नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 9 दिसंबर को तेलंगाना के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए तेलंगाना थल्ली प्रतिमा का अनावरण किया। तेलंगाना विधानसभा में तस्वीरों और वीडियो पर प्रतिबंध, विपक्ष ने उठाए सवाल। विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। उमर अब्दुल्ला ने रोहिंग्या शरणार्थियों को मानवीय संकट बताया, केंद्र सरकार से स्पष्ट नीति की मांग की। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित किया। फिलीपींस में कान लाओन ज्वालामुखी विस्फोट, 87,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 9 दिसंबर को तेलंगाना के लिए एक ऐतिहासिक दिन करार देते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सचिवालय में नए डिजाइन की गई तेलंगाना थल्ली प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि यह प्रतिमा तेलंगाना के भूमि के महत्व को दर्शाती है और ये हमें याद दिलाती है कि यह भूमि हमारे लिए माँ की तरह पवित्र है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के लोग विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं और प्रत्येक नागरिक तक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाना हमारा जिम्मेदारी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने उन दलों की आलोचना की जो तेलंगाना थल्ली प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं और कहा है कि इन दलों का अपना एजेंडा है जिस पर जनता को ध्यान नहीं देना चाहिए। शासन मंडली चेयरमैन पेद्दलु सुखेंदर रेड्डी गारिनी, शासन सभा అధ్యక్షులు గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ గారిని, ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మిత్రుడు బట్టి విక్రమార్క గారిని, పెద్దలు మంత్రివర్యులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని, పెద్దలు మంత్రివర్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారిని, పెద్దలు మంత్రివర్యులు దుద్దిల్ల శ్రీధర్ బాబు గారిని, పెద్దలు మంత్రివర్యులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారిని, పెద్దలు మంత్రివర్యులు దామోదర్ రాజ నరసింహ గారిని, సోదరిమణి మీ అభిమాన నాయకురాలు మంత్రివర్యులు ధనసరి అనసూయ సీతక్క గారిని, అదేవిధంగా మంత్రివర్యులు సోదరిమణి కొండా సురేఖ గారిని, హైదరాబాద్ నగర ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు మిత్రుడు పొన్నం ప్రభాకర్ గారిని, మిత్రుడు మంత్రివర్యులు పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని, అదేవిధంగా తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారిని, మిగతా మంత్రివర్గ సహచరులు, శాసన మండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, తెలంగాణ రాష్ట్ర IAS IPS IFS అధికారులు ఈరోజు ఇక్కడ చూస్తుంటే కృష్ణా గోదావరి నదులు హైదరాబాదు నగరంను ప్రవహిస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలంగాణ నలుమూలల నుంచి మా ఆడబిడ్డలు తెలంగాణ తల్లి విగ్రహావిష్కరణలో పాల్గొని ఈ కార్యక్రమం ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమంగా చరిత్ర పుటలలో శాశ్వతంగా నిలిచిపోయే విధంగా ఇందులో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా నా శుభాకాంక్షలు. మొదటి సంవత్సరం పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంలో పెద్దలు అందశ్రీ గారిని, మిత్రులు ప్రిన్సిపల్ ఇన్ఛార్జ్ వైస్ ఛాన్సలర్ JNTU ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ గంగాధర్ గారిని, శిల్పి రమణారెడ్డి గారిని ఈ సందర్భంగా సన్మానించుకోవడం తెలంగాణ కవులు కళాకారులకు సముచితమైన స్థానం ఇవ్వాలన్న ఆలోచన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టడం చాలా ముఖ్యమైన అంశం. మిత్రులారా, ఏ ప్రాంతానికైనా ఈ భూలోకంలో గుర్తింపు అస్తిత్వం తల్లి. మన సంస్కృతికి సాంప్రదాయాలకి ప్రతిరూపం తల్లి. 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు దశాబ్దాల కాలం పాటు పోరాటం చేసి అమరులై సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో
ఈరోజు మన తెలంగాణ తల్లిని ప్రతిష్ఠించుకోవడం మనందరికీ గర్వకారణం. ఈ సందర్భంగా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సమైక్య పాలనలో ఆనాడు తెలంగాణ సంస్కృతి మీద సాంప్రదాయాల మీద దాడి చేయడమే కాదు, హవయేళన చేస్తూ తెలంగాణ ప్రజల్ని అవమానించిన సందర్భాలు ఎన్నో మనం చూసినాం. అక్కడి నుంచి విద్యార్థి ఉద్యమకారులు అమరులై సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 10 సంవత్సరాలు తప్పకుండా తెలంగాణ సంస్కృతి పునరుజ్జీవింపబడుతుంది, మన తల్లిని గౌరవించుకుంటామని ఆలోచన చేసినాం. కానీ ఒక వ్యక్తి, ఒక కుటుంబం, ఒక రాజకీయ పార్టీ తమ గురించి మాత్రమే ఆలోచన చేసి 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆకాంక్ష పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించడం వల్ల ఈనాడు ప్రజాప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డ తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆకాంక్ష నెరవేర్చాలన్న ఆలోచనతో నా సహచర మంత్రివర్గ సహచరులందరూ సంపూర్ణమైన సహకారంతో ఈరోజు ఈ కీలకమైన నిర్ణయాలు మనం తీసుకోవడం జరిగింది. మిత్రులారా, ఆనాడు మీకు అందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున లేచినప్పుడు తెలంగాణ యువకులు ముఖ్యంగా తాము తిరిగే బండి మీదనే కాదు, తమ గుండెలపై టీజీ అని రాసుకొని తాము కట్టెల్లో కాలిన శాశ్వతంగా పచ్చబొట్టు పొడిపించుకున్న టీజీ ప్రజలకు శాశ్వతంగా గుర్తింపు ఉండాలి అని ఆనాడు టీజీ తెలంగాణ యువకులు గుండెల మీద రాయించుకున్నారు. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఆనాటి ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటే టీజీ అని కాకుండా టీఎస్ అని నామకరణం చేయడం ద్వారా తెలంగాణ ఉద్యమకారుల ఆకాంక్షను ఆనాటి ప్రభుత్వము నిర్లక్ష్యం చేసింది. అందుకే ప్రజాప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఏ ఉద్యమకారులు, ఏ అమరవీరులు తమ గుండెలపై టీజీ అని రాసుకున్నారో ఆ టీజీనే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదింపజేయడం ద్వారా తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షను శాశ్వతంగా పదిలపరిచింది. ఇదే కాదు, ఈనాడు ఇక్కడున్న నిరుద్యోగ యువకులు, ఉద్యమకారులు, విద్యార్థులందరికీ తెలుసు. అదే కాదు, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, కాకతీయ యూనివర్సిటీ గోడల మధ్య మారు మ్రోగుతున్నది ఈ రోజుకు కూడా జయ జయ హే తెలంగాణ జనని జయ కేతనమని. ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఉవ్వెత్తున లేపి ఆనాడు ఉద్యమకారులకు స్ఫూర్తినిచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో ఎంతోమంది కవులు, కళాకారులు గొంతెత్తి పాడిన సందర్భంలో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలబడ్డ అందశ్రీ గేయం రాష్ట్ర గీతంగా మార్చుకుంటామని ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సమైక్య పాలనలో మనం ఎన్నోసార్లు చెప్పుకోవడం జరిగింది. 10 సంవత్సరాలు ఎదురు చూసినాం, కానీ ఆనాటి పాలకుల యొక్క ఆలోచన నాకు తెలీదు. ఎందుకో జయ జయ హే తెలంగాణ అనే గీతం రాష్ట్ర గీతంగా అవతరించలేదు. అందుకే ప్రజాప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత అందశ్రీ గారిని సంప్రదించి వారి ఆలోచనల మేరకు గాయకులతో మాట్లాడి ఈనాడు అధికారికంగా జయ జయ హే తెలంగాణ గీతాన్ని రాష్ట్ర గీతంగా మార్చుకోవడమే కాదు, రాష్ట్ర పరిపాలనకు గుండెకాయ లాంటి సచివాలయంలో ఆ గాయకుడు, ఆ రచయిత అందశ్రీని సన్మానించుకోవడం జీవితకాలం గుర్తుండిపోయే ఒక మధుర జ్ఞాపకం. ఇంత గొప్ప అవకాశం, అదేవిధంగా రాష్ట్ర సాధన సమయంలో రాజకీయ तेलंगाना विधानसभा परिसर में तस्वीरों और वीडियो लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके बाद विधानसभा की लॉबी में चेतावनी वोट भी लगाए गए हैं। विपक्ष ने इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि ये प्रतिबंध विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों और वीडियो बाहर जाने से रोकने के लिए लगाया गया है। पहले ऐसी कोई रोक ठोक नहीं थी, लेकिन अब नए नियम लागू हो गए हैं। विपक्ष विशेष रूप से बीआरएस सरकार के इस फैसले से नाराज हैं और इसे अलोकतांत्रिक और सत्तावादी बता रहे हैं। बीआरएस ने आरोप लगाया है कि यह प्रतिबंध विधानसभा परिसर में उनकी आवाज को दबाने का प्रयास है।
संसद में जारी गतिरोध के बीच विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने प्रस्ताव दोपहर 1:37 पर राज्यसभा महासचिव को सौंपा, जिस पर 60 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। ये प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 67(b) के तहत उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की मांग पर आधारित है। विपक्षी दलों ने कल मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने से रोकने के घटनाक्रम का हवाला देते हुए सभापति के रवैये पर कड़ी आलोचना जताई है। इस प्रस्ताव पर सोनिया गांधी या किसी भी पार्टी के फ्लोर लीडर ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रोहिंग्या शरणार्थी के मुद्दे को मानवीय संकट करार देते हुए केंद्र सरकार से इस पर स्पष्ट नीति अपनाने की मांग की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यदि इन शरणार्थियों को वापस भेजना संभव है तो उन्हें वापस भेज देना चाहिए, लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो उनकी जान जोखिम में डालना गलत है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक रोहिंग्या शरणार्थी भारत में है, उनके साथ इंसानियत के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि इस मुद्दे को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए और भारत जैसी सभ्यता वाले देश के लिए ये जरूरी है कि वह अपने परंपराओं के अनुसार इन शरणार्थियों का ख्याल रखे। मरकजी हुकूमत ये तय करे कि उनके लिए करना क्या है। अगर उन्हें वापस भेजना है तो वापस भेजिए, अगर भेज सकते हो तो भेजिए, अगर नहीं भेज सकते हो तो फाका उनको यहाँ मार तो नहीं सकते हो ना, या ठंड से उनको मार नहीं सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताए कि इनके साथ करना क्या है। जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक तो उनका थोड़ा बहुत तो देखभाल आपको करना होगा। हमने उनको यहाँ लाके बसाया नहीं, उनको लाया गया, यहाँ बसाया गया। अगर मरकज़ की पॉलिसी बदल गई है तो उठा के ले लीजिए उनको, जहाँ ले लेना है ले लीजिए, लेकिन जब तक यहाँ पे हैं उनको जानवरों के साथ उनका सलूक तो नहीं किया जा सकता ना। इंसान है, इंसान के तौर पे उनके साथ सलूक किया जाना चाहिए। बांग्लादेश और हमारे मुल्क के रिश्तों में थोड़ा सा तनाव तो है हालात को लेके। अब फॉरेन सेक्रेटरी साहब वहाँ मीटिंगें कर रहे हैं, हालात को सुधारने की कोशिश की जा रही है ना, कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बने रहें, ये शायद हमारी एक मजबूरी भी है और होना भी ऐसे। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है और राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली के दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। ताहिर हुसैन, जो पहले आम आदमी पार्टी के सदस्य थे, अब AIMIM के उम्मीदवार के रूप में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे। ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की घोषणा की है, जहां उन्होंने बताया कि ताहिर हुसैन ने अपने परिवार और समर्थकों के साथ मिलकर पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सदस्य दल की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के 1 साल पूरा होने पर जन कल्याण पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महासचिव हितानंद ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर 11 से 26 दिसंबर तक होने वाले जन कल्याण पर की विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। वो जो 11 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, इस आयोजनों के लिए बृहद स्तर पर अलग अलग प्रकार के कामों को जोड़ते हुए लगभग 18,354 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण इस अभियान में किया जाएगा। संपूर्ण प्रदेश में 28 स्थानों पर ये तो चल रहा है, ये चलते है। अब आ रही, नमस्कार, आप तो आ रही है। मैं चल रही बात बिल्कुल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद 1 वर्ष इस सरकार का हो रहा है। ऐसे में सरकार के स्तर पर हमने 2 प्रकार के अलग अलग अभियान और पर्व 2 तरह से मनाने का प्रयास किया गया। एक हमारी
जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए, जनहितैषी हितग्राहियों के लिए नगरीय स्तर पर सभी वार्डों में, पंचायत स्तर पर गांव-गांव के अंदर तक हमारी 56 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के हमारे वार्ड के अंदर पार्षद, वार्ड के अंदर के अधिकारी, कर्मचारी, नगरीय स्तर पर नगर निगम आयुक्तों को हमने इसका नोडल ऑफिसर बनाया है, जो 11 दिसंबर से लगा करके 26 जनवरी तक लगातार 40 दिन तक हमारे विभिन्न प्रकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाकर के जो हितग्राही पात्र पाए जाएंगे उन सबको वह सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय किया है। इसी प्रकार से जन कल्याण पर्व के माध्यम से हमारी बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के प्रदेश के स्तर पर हमने कुछ कार्यक्रम बनाए जो लगभग एक पखवाड़ा के रूप में लगेंगे, जिसको हमने नाम दिया जन कल्याण पर्व के माध्यम से, जिसमें लगभग 18,354 करोड़ के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण अलग अलग अवधि में किया जाना प्रस्तावित किया गया है। खास करके हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारे नदी जोड़ो अभियान में हमें बड़ी सफलता मिली है। नदी जोड़ो अभियान में केन बेतवा ये बहुत बड़ी वृहद योजना है। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वप्न देखा था कि यह नदी जोड़ो अभियान होना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से भारत की पहली नदी जोड़ो अभियान की पहली योजना केन बेतवा, जो बुंदेलखंड और यूपी दोनों राज्यों के मध्य में लगभग 1 लाख करोड़ की ये योजना है, जिसके माध्यम से हमारी इस योजना के पहले चरण का भूमि पूजन लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी समय देंगे, तो हम इस पखवाड़े के अंदर ही इस योजना को रखने जा रहे हैं। एक 20 वर्ष से ज़्यादा समय से पार्वती काली सिंध चंबल योजना पे भी हमने सहमति दी है कि हमारे राज्य और राजस्थान दोनों के हित सामान्य है और सहज है। ऐसे में पुराने काल में लंबे समय तक इस योजना को, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में कठिनाई हुई रहती कि विपरीत राजनीति के जब राजनेता सरकार बनाते हैं तो कमोबेश इसकी कीमत हमको चुकाना पड़ी है, लेकिन अब भाग्य से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की एक ही दल की राजनीति के कार्यकर्ता होने के नाते से यशस्वी प्रधानमंत्री के इस आग्रह से हमने भी कहा कि पार्वती काली सिंध चंबल तीनों का जल आगे जाकर जमुना और जमुना से गंगा में जाता है, अर्थात गंगा बेसिन की नदियां हैं। तो हमारे लिए ये बड़ी योजना पे काम करने का हमने निर्णय किया है। हमने सहमति दी है। आमतौर पर इस पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश सरकार बहुत दिनों तक लड़ती रही है, लेकिन हमने इसमें समाधान दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, ये दोनों राज्यों के लिए बेहतर होगी। तो 10 जिले हमारे और बाकी के 13 जिले राजस्थान के, दोनों के बीच में इसका भी एक हमने अपनी जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से स्वीकृति दी, जिसमें प्रियंका गांधी ने जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बयान देते हुए सभी आरोपों को बकवास और बेबुनियाद करार दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये आरोप केवल एक रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल और कुछ ताकतें जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाकर असल मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाना चाह रही है। प्रियंका गांधी ने अपने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा है कि ऐसे निराधार आरोपों का कोई आधार नहीं है और उनका कोई मतलब नहीं है। प्रियंका गांधी का यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। क्यों नहीं उठाए? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही है सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गाँव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं। और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हज़ारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाएँ, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाएं। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा? नहीं, वो उनका कहना है कि सोरोस पे भी चर्चा होनी चाहिए। Ma'am, on this George Soros link, what do you have to say on that? I think it is the most ridiculous thing they could come up with. They're talking about some 1994. Nobody has any record of it. I don't know what they're talking. Nobody knows what they're talking about. The only reason they're doing it is they do not want to discuss Adani.
9 दिसंबर को मध्य फिलीपींस में स्थित कान लाओन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आसमान में 3 किलोमीटर तक राख का गुब्बारा फैल गया। फिलीपींस इंस्टीट्यूट के अनुसार ये ज्वालामुखी अभी भी विस्फोट कर सकता है। अगले कुछ दिनों तक खतरा बना रहेगा। थर्मल और एक्सरे कैमरा मॉनिटर के अनुसार गर्म हवा और चट्टान का घनत्व बहुत अधिक है और पहाड़ की चोटी से भारी मात्रा में गर्म राख और कीचड़ सैकड़ों फीट प्रति सेकंड की गति से नीचे गिर रहा है। फिलीपीन के सिविल डिफेंस ऑफिस ने 87,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया है। तुर्की में 2 सैन्य हेलीकॉप्टर के आमने सामने टकराने से 5 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिन सैन्य कर्मियों की मौत हुई है वो सभी एक ही हेलीकॉप्टर में सवार थे, जबकि दूसरा हेलीकॉप्टर सुरक्षित रूप से उतर गया है। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने की भी सूचना मिली है, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। आखिर में हेडलाइंस फिर। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 9 दिसंबर को तेलंगाना के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए तेलंगाना थल्ली प्रतिमा का अनावरण किया। तेलंगाना विधानसभा में तस्वीरों और वीडियो पर प्रतिबंध, विपक्ष ने उठाए सवाल। विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। उमर अब्दुल्ला ने रोहिंग्या शरणार्थियों को मानवीय संकट बताया, केंद्र सरकार से स्पष्ट नीति की मांग की। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित किया। फिलीपींस में कान लाओन ज्वालामुखी विस्फोट, 87,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। 1TV हिंदी समाचार यहीं पे खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।